Dear students, today we will read the lesson Albert Einstein at School, written by Patrick Pringle. This chapter is an extract from the biography of Albert Einstein, the greatest scientist. Albert Einstein was one of the greatest scientists. He is known for his theory of relativity. But during his school days, he was considered a dull student. He did not like his school and the subject taught. He considered it useless to study subjects other than those related to science. His history teacher was ever at loggerheads with him. Only the mathematics teacher liked him. Albert became fed up with his school. At last, he devised a plan to remain away from school. With the help of his friend Yuri, he managed to get a fake medical certificate showing that he was suffering from nervous breakdown. At last, the school authorities expelled him from school. About the author, Patrick Pringle. Patrick Pringle was born in 1917 in London, United Kingdom. He has written several books, including The Young Einstein and Jolly Roger. The chapter Albert Einstein at School is a part of the book The Young Einstein. Theme of the lesson. The biographical piece discusses the childhood of Albert Einstein, the famous physicist. It focuses on Einstein's disdain for learning facts instead of focusing on understanding the lessons. Einstein was particularly gifted in maths and science, but often had trouble in other classes because of his refusal to learn facts. The lesson is also a critique on the role of rote learning in modern education. Einstein once said, "To me, the worst thing seems to be a school principally to work with methods of fear, force, and artificial authority. Such treatment destroys the sound sentiments, the sincerity, and the self-confidence of pupils and produces a subservient subject." Characters. Albert Einstein, a student. Mr. Braun, history teacher at Einstein School. Yuri, a friend of Albert in Munich. Mr. Koch, mathematics teacher at Albert School. Landlady, a woman who rented a room in her house to Albert. Head teacher, headmaster of the school. Dr. Ernstwell, a doctor who helped Einstein on Yuri's request. Elsa, Albert's cousin. These are the characters. In what year? Einstein asked the history teacher. Did the Prussian defeat the French at Waterloo? किस वर्ष में प्रशियंस ने फ्रेंच को वाटरलू के युद्ध में हराया था? ये इतिहास के टीचर ने प्रश्न किया. आई डोंट नो सर. श्रीमान जी, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता. वाई डोंट यू नो? तुम क्यों नहीं जानते? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन एनफ. तुम्हें अक्सर ये बात बताई गई है पढ़ाते समय. आई मस्ट हैव फॉरगॉटन. निश्चित रूप से मैं भूल गया. डिड यू एवर ट्राई टू लर्न? क्या कभी तुमने जानने की कोशिश की? तुमने याद करने की कोशिश की? आस्क्ड मिस्टर ब्राउन. ब्राउन ने पूछा. नो सर. नहीं श्रीमान. अल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी. अल्बर्ट ने अपने उसी ईमानदारी से भरे हुए और सोचते हुए उसने जवाब दिया कि नहीं श्रीमान, मैंने कभी भी याद करने की कोशिश नहीं की. वाई नॉट? क्यों नहीं? आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स. क्योंकि श्रीमान, मुझे तारीखें याद करने में कोई भी तथ्य नहीं दिखता कि मैं तारीख याद करूं. वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन ए बुक. कोई कभी भी किताब में उसे देख सकता है, तारीखों को. मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर ए फ्यू मोमेंट्स. मिस्टर ब्राउन, हिस्ट्री के टीचर, कुछ क्षणों के लिए एकदम मूक बने रहे. यू अमेज मी आइंस्टीन. तुम मुझे आश्चर्य में डाल देते हो. ही सेड एट लास्ट. और अंत में उन्होंने कहा, डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स. क्या तुम्हें ये नहीं
लगता कि कोई कभी भी किताब में कुछ भी देख सकता है, पता कर सकता है? दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। जो स्कूल में तुम पढ़ते हो किसी भी विषय के साथ ये अप्लाई करता है। तुम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में तुम किताब खोल करके जान सकते हो। यस सर, हाँ श्रीमान। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। तो मुझे लगता है कि तुम्हें वास्तविकताओं को जानने में कोई रुचि नहीं है। फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा, निश्चित रूप से श्रीमान, मुझे तारीखों को और इन वास्तविकताओं को याद करने में, पढ़ने में कोई रुचि नहीं है। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। तो फिर इसका तात्पर्य यह है कि तुम्हें शिक्षा प्राप्त करने में कोई विश्वास नहीं है। ओ यस सर आई डू, हाँ श्रीमान, ऐसा ही है। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन, क्योंकि मुझे लगता है कि वास्तविकताओं को याद करना शिक्षा है। इन दैट केस, सेड द हिस्ट्री टीचर विथ हैवी सरकास्म। तो उस मामले में इतिहास के शिक्षक ने कहा, व्यंग करते हुए, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो शायद तुम तो क्लास को ये बताना पसंद करोगे आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रति आइंस्टीन की क्या सिद्धांत है, ये तुम क्लास को बताने का कष्ट करोगे। अल्बर्ट फ्लस्ट, अल्बर्ट मूक बने रहे। आई थिंक इट इज नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज। मैं समझता हूं कि ये वास्तविकताएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितने की विचार। ही सेड, आइंस्टीन ने कहा, आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स। मुझे इसमें कोई भी बात नजर नहीं आती कि मैं युद्धों की तारीखों को याद करूं, और इवन विच ऑफ द आर्मी स्किल्ड मोर मैन, या कौन सी सेना ने किस सेना के सैनिकों को ज्यादा मारा। I'd be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other। बल्कि मेरी रुचि इस बात में रहेगी कि उन सैनिकों ने दूसरे देश के सैनिकों को क्यों मारा। मुझे इस बात को जानने में रुचि रहेगी, न कि कितने को मारा, संख्या जानने में। दैट्स एनफ, ये पर्याप्त है। मिस्टर ब्राउन्स आईज वेर कोल्ड एंड क्रूएल। मिस्टर ब्राउन ठगे से खड़े रहे, गुस्सा भी आया। वी डोंट वांट ए लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन। आइंस्टीन, हमें तुमसे एक लेक्चर की आवश्यकता नहीं है इस विषय पर। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। आज तुम क्लास ओवर होने के बाद एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रुकोगे। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड। जबकि मैं नहीं सोचता कि इससे तुम्हारा कोई भला होगा। इट डोंट डू द स्कूल एनी गुड, और इससे स्कूल का भी कोई भला नहीं होगा। आइदर यू आर ए डिसग्रेस, तुम्हारे पर शर्म आती है, तुम शिक्षा को महत्वपूर्ण नहीं मानते। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ स्कूल आते क्यों हो। इट इज नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। एल्बर्ट ने कहा, मैं अपनी इच्छा से नहीं आता। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय। तो फिर तुम एक अच्छे विद्यार्थी नहीं हो, तुम अपने प्रति उदार भी नहीं हो। एंड ऑफ टू बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, और तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। मैं सुझाव देता हूं तुम अपने पिता से कहो कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाए। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। अल्बर्ट को बड़ा बुरा लगा जब वो दोपहर बाद स्कूल से निकले। नॉट दैट इट हैड बीन ए बैड डे, इसलिए नहीं कि वो एक बुरा दिन था। मोस्ट डेज वेर बैड नाउ, अधिकांश दिन बुरा ही होता था। एनीवे, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि अगली सुबह फिर इसी स्थान पर आना है, इस बात से उन्हें बहुत बुरा लगता था, अच्छा नहीं लगता था। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे। उनकी एकमात्र इच्छा थी कि उनके पिता यहाँ से ले जाए। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन ये पूछने की भी हिम्मत नहीं थी। ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी। अल्बर्ट आइंस्टीन जानते थे कि इसका उत्तर क्या होगा, पिता क्या बोलेंगे। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, कि उन्हें जब तक डिग्री नहीं मिल जाती, डिप्लोमा नहीं मिल जाता, उन्हें यहीं रुकना है, यहीं पढ़ाई कर जारी रखनी है। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप, और अपने जहाँ पे ठहरे हुए थे हॉस्टल में जाने में भी उन्हें कोई खुशी नहीं थी। His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich।
वो इतने गरीब परिवार से थे, उनके पिता के पास इतना भी पैसा नहीं था कि अल्बर्ट अपने लिए म्यूनिच में कोई छोटा सा भी कमरा ले सकते थे. He did not mind that bad food and lack of comfort. अल्बर्ट आइंस्टीन को इस बात से पता कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता या अच्छा कंफर्ट नहीं है, और इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर या गंदी जगह पे है. बट ही हेटेड द एटमॉस्फियर ऑफ स्लम वायलेंस. लेकिन वो जहाँ पे रहते थे स्लम में, जो जिस तरह की हिंसा होती थी, जो लड़ाई झगड़े होते थे, उससे अल्बर्ट आइंस्टीन को बहुत घृणा थी. हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली. उनकी जो मकान मालकिन थी, वो अपने बच्चों को नियमित रूप से पिटाई किया करती थी. एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हिम. और प्रत्येक रविवार को उस महिला का पति ड्रंक होकर के आता था और उसे मारता था. ये अल्बर्ट आइंस्टीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. अल्बर्ट स्कूल एंड होम लाइफ. एट स्कूल, the history teacher asked Einstein the dates of the French defeat at the hands of the Prussians at Waterloo, to which Einstein replied that he didn't know because there was no value in learning something that can be looked up in a book. Einstein points out to his teacher that learning facts is not education. He said, "I think it is not facts that matter, but ideas." The teacher asked Einstein to ask his father to take him out of the school as he was not fit for school. Albert hated going to school and wanted his father to take him out of the school, but his father wanted him to earn his diploma. Albert's family was poor and lived in a slum, and although he didn't mind the lack of comfort or bad food, he hated the atmosphere of slum violence. But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri. लेकिन कम से कम तुम्हारे पास एक अपना कमरा है जो कि पर्याप्त है, तुम यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हो, यूरी ने कहा. When he called round in the evening, जब वो शाम को आया, at least you live among civilized human beings. कम से कम तुम सभ्य लोगों के बीच में रहते तो हो, even if they are all poor. यद्यपि वे सभी गरीब हैं, गरीब विद्यार्थी हैं, said Albert. अल्बर्ट ने कहा, they are not all civilized. वे सभी सभ्य नहीं हैं. यूरी रिप्लाइड. यूरी ने जवाब दिया, डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन ए ड्यूएल. तुमने नहीं सुना कि उनमें से एक की मृत्यु आपसी लड़ाई में हो गई थी. एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम. और जिसने उस लड़के को मारा, उसके साथ क्या हुआ था. नथिंग, ऑफ कोर्स, नहीं, कुछ भी नहीं पता. ही इज इवन प्राउड ऑफ इट. वो जो जिसने मारा, उसे तो गर्व है कि उसने मारा. His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. उसे तो गर्व है अपने ऊपर कि उसने उसको लड़ाई में मारा. उसकी एकमात्र चिंता का भी यही है कि अथॉरिटीज ने उससे कहा कि देखो, आगे से कोई इस तरह की लड़ाई नहीं करोगे. He is upset about this. वो इसके बारे में अपसेट है, because he has not a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. उसे तो एकमात्र बस यही चिंता है और वो अपसेट है, दुखी है कि उसके चेहरे पर एक भी खरोंच नहीं आई जिसे दिखा करके वो कह सके, देखो मैंने इसको मारा. जीवन पर्यंत वो इसे ऑनर के रूप में लेता कि इस लड़ाई में देखो ये उसका निशान है जिसमें मैंने उसको मार दिया. ओह, एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट. अल्बर्ट आश्चर्य से कहा, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स. और ये विद्यार्थी हैं. वेल, यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी. यूरी ने कहा, तुम भी एक विद्यार्थी बनोगे. आई डॉप्ट इट. मुझे संदेह है, सेड अल्बर्ट. अल्बर्ट ने कहा, आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा. मैं नहीं समझता, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी पास कर पाऊंगा एग्जाम, स्कूल का एग्जाम. He told his cousin Elsa the same day next time she came to Munich. और उसने अपने कजिन एल्सा से वही बात बताई जब वो म्यूनिच आई. नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन. आमतौर पे वो बर्लिन में रहती थी. वेयर हर फादर हैड ए बिजनेस.
जहाँ पे उसके पिता व्यवसाय करते थे। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स एल्बर्ट, मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि तुम एग्जाम पास कर लोगे। इफ यू ट्राइड, अगर तुमने कोशिश की होती, शी सेड, उसने कहा। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर, मैं ऐसे बहुत से लड़कों और लड़कियों को, विद्यार्थियों को मैं जानती हूँ जो तुमसे भी ज्यादा स्टूपिड है। हु गेट थ्रू, जो पास कर गए, एग्जाम में पास हो जाते हैं। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, वे कहते हैं कि तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट, तुम्हें इस बात को समझने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है कि तुम्हें क्या सिखाया गया, क्या पढ़ाया गया। जस्ट बी एबल टू रिपीट इन द एग्जाम, केवल तुम्हारे अंदर इतनी योग्यता होनी चाहिए कि तुम उसे एग्जाम के दौरान रिपीट कर सको। दैट्स द होल ट्रबल, यही तो मुसीबत है, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा, आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाई हार्ट, मुझे हृदय से चीजों को सीखने में मैं अच्छा नहीं हूं, मुझे ये सब चीजें याद नहीं होती। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, तुम्हें इसमें अच्छा होने की आवश्यकता नहीं है। एनी वन कैन लर्न लाइक ए पैरट, अरे कोई भी तोते की तरह से रट सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम केवल कोशिश नहीं करते। एंड एट आई ऑलवेज सी यू विथ ए बुक अंडर योर आर्म, और मैं अभी भी देख रही हूँ तुम किताब अपने बाजू में, तुमने एक किताब दबा रखी है। एडेड एल्सा, एल्सा ने कहा उसकी तरफ इशारा करते हुए। व्हाट इज द वन यू आर रीडिंग, ये कौन सी पुस्तक है जो तुम पढ़ रहे हो। ए बुक ऑन जियोलॉजी, जियोलॉजी पे बुक है। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, पत्थर, चट्टाने। डू यू लर्न दैट, तुम ये पढ़ रहे हो। नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, नहीं नहीं हमारे स्कूल में साइंस की पढ़ाई नहीं होती। देन वाई आर यू स्टडिंग इट, तो फिर तुम क्यों ये पढ़ रहे हो। बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे ये पसंद है। इजंट दैट ए गुड एनफ रीजन, क्या ये एक पर्याप्त कारण नहीं है कि मुझे ये विषय पसंद है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। एल्सा साइड, एल्सा चुप हो गई। यू आर राइट ऑफ कोर्स, तुम निश्चित रूप से सही हो एल्बर्ट, शी सेड, बट इट वोंट हेल्प यू विथ योर डिप्लोमा, लेकिन तुम्हें स्कूल के एग्जाम में पास होने में इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कंफर्ट वाज म्यूजिक, और साइंस में रुचि होने के अलावा उसका एकमात्र रुचिकर विषय म्यूजिक था। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली, और निश्चित रूप से अपना वायलिन बजाया करता था। अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप, जब तक कि उसकी मकान मालकिन उसे बंद करने के लिए नहीं कहती। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, ही सेड, और वो कहती थी कि ये तुम बजा रहे हो, ये मेरे सीधे मस्तिष्क में प्रभाव डालता है, बंद करो ये म्यूजिक। देयर इज एनफ नॉइज इन दिस हाउस, क्या इस घर में बहुत ज्यादा शोर है। विथ ऑल द किड्स हाउलिंग, सारे बच्चे शोर मचा रहे हैं, धमा चौकड़ी कर रहे हैं। अल्बर्ट वाज टेम्प्टेड टू पॉइंट आउट ऑफ द दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज शी हु मेड देम हाउल, और अल्बर्ट ये कह सकता था कि अधिकांश समय ये महिला ही कारण होती थी जो बच्चे हमेशा चिल्लाते रहते थे। बट ही डिसाइडेड इट वाज बेटर टू से नथिंग, लेकिन उसने निर्णय किया कि अच्छा है कि वो कुछ न कहे। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ही टोल्ड यूरी आफ्टर 6 months एलोन इन म्यूनिच, और उसने यूरी से कहा म्यूनिच में 6 महीने के लिए रहने के बाद, इट इज absurd दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, ये बेकार है कि मैं इस तरह से मैं चला जाऊं। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरीवन्स टाइम, और अंत में ये बेकार ही होगा कि मैं अपने पिता का पैसा बर्बाद करूं और सभी लोगों का समय। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ आई स्टॉप नाउ, ये अच्छा होगा कि मैं अभी सब बंद कर दूं। एंड देन व्हाट विल यू डू, फिर तुम क्या करोगे। यूरी आस्क्ड, यूरी ने पूछा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इफ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक, और मुझे भय है कि अगर मैं मिलान गया तो मेरे पिताजी वापस मुझे भेज देंगे। अनलेस हिज आईज ग्लीम विथ ए सडन आइडिया, और तभी उसकी आंखों में एक अचानक से विचार आया। और यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स, यूरी क्या तुम्हें कोई ऐसा डॉक्टर पता है जो परिचित हो। आई नो ए लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, हाँ मैं कुछ मेडिकल के विद्यार्थियों को जानता हूँ जो मेरे मित्र हैं। सेड यूरी, यूरी ने कहा। डॉक्टर, नो, डॉक्टर नहीं। आई हैव नेवर हैड एनफ मनी टू गो टू वन,
मेरे पास इतना पैसा नहीं रहा है कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं। वाई, क्यों? सपोज सेड अल्बर्ट, मान लो अल्बर्ट ने कहा, देन आई हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। सपोज ए डॉक्टर वुड से इट, मान लो कोई डॉक्टर मेरे बारे में ऐसा कह दे कि इसका तो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। इट इज़ बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल, और ये मेरे लिए स्कूल जाना बहुत बुरा है। एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और मुझे तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए इस स्कूल के माहौल से। आई कांट इमेजिन ए डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। यूरी ने कहा, मैं नहीं कल्पना कर सकता तो कोई डॉक्टर ऐसा कहेगा। आई मस्ट ट्राई, सेड अल्बर्ट। नहीं, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। टू फाइंड ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन नर्व्स, जो नर्व्स में स्पेशलाइज हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, अरे ऐसे तो बहुत से डॉक्टर हैं, यूरी टोल्ड हिम। ही हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, वो एक क्षण के लिए हिचकिचाया, एंड देन एडेड, और फिर कहा रेदर रिलेक्टेंटली, अनिच्छापूर्वक, आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ दे नो वन। मैं कुछ विद्यार्थियों, मेडिकल के विद्यार्थियों से पूछूंगा कि कोई जानता है किसी ऐसे डॉक्टर को। इफ यू लाइक, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो। विल यू? ओ थैंक यू यूरी, हाँ हाँ यूरी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अल्बर्ट आइज वेर शाइनिंग, अल्बर्ट की आंखों में चमक थी। वेट ए मोमेंट, एक क्षण रुको। आई हैवेंट फाउंड वन एट, अरे रुको रुको, इतना मत खुश हो, मुझे अभी कोई डॉक्टर नहीं मिला है। ओ बट यू विल, हाँ लेकिन तुम निश्चित रूप से कोई ऐसा डॉक्टर ढूंढ लोगे। एंड इफ आई डू, आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू, हाँ अगर मैं ऐसा कर लूंगा तो मुझे नहीं पता कि वो डॉक्टर भी तुम्हारी मदद करेगा कि नहीं, जैसा तुम चाहते हो। ही विल डिक्लेयर एल्बर्ट, एल्बर्ट ने घोषणा की, नहीं नहीं वो जरूर करेंगे। आई एम गोइंग टू हैव ए रियल नर्वस ब्रेकडाउन, मैं ऐसा शो करने जा रहा हूँ कि मेरा वास्तव में नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, जिससे उस डॉक्टर को आसानी होगी। ही लाफ्ड, मेरे लिए वो बहुत खूब प्रसन्नतापूर्वक हंसा। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, मैंने कभी भी तुम्हें नर्वस होते हुए नहीं देखा। रिमार्क यूरी, यूरी ने बताया। ए डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, अल्बर्ट एश्योर्ड हिम, और एक दिन या 2 दिन और मैं स्कूल गया तो वास्तव में मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, अल्बर्ट ने ऐसा बताया यूरी को। आइंस्टीन्स ट्रबल विथ लर्निंग, टिल नाउ स्टूडेंट्स यू हैव लर्नड। Einstein and his friend Yuri discussed their respective situations, Yuri sharing a room with fellow students, some of whom lacked civility, while Einstein expressed his doubt at his ability to be a student one day. Einstein and his cousin Elsa discussed his refusal or inability to learn things by heart to clear exams, even though he always carries a book in his arms. Apart from reading science books, Einstein also liked to play the violin. Einstein hatches a plan with Yuri to get a medical students to prescribe him to leave school as it is affecting him badly. Certainly, he had lost his high spirits when Yuri saw him next. और निश्चित रूप से जब अगली बार यूरी ने उससे मिला तो उसके अंदर सारा जोश उसका जाता रहा था, ठंडा हो गया था। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, ही सेड, उसने कहा कि मैं बिल्कुल यहाँ रुकना नहीं चाहता। आई रियली शैल हैव ए नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई मी डॉक्टर, मेरा तो वास्तव में ही नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा जिससे डॉक्टर मुझे देख के ही कह सकता है। कीप इट अप देन, सेड यूरी, यूरी ने कहा ठीक है तो ऐसे ही बनाए रखो हालत। आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया है। यू हैव? अल्बर्ट फेस लिट अप, अल्बर्ट का चेहरा चमक उठा। ओ गुड, व्हेन कैन आई सी हिम, मैं उनसे कब मिल सकता हूँ? आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, कल की शाम का मैंने अपॉइंटमेंट ले रखा है, यूरी ने बताया। हियर इज द एड्रेस, ये देखो पता है। ही हैंडेड अल्बर्ट ए पीस ऑफ पेपर, उसने पता लिखा हुआ वो कागज अल्बर्ट को पकड़ाया। डॉक्टर एंस्टवेल, ही इज ही ए स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, आस्क्ड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने पूछा क्या वो स्पेशलिस्ट है नर्वस के मामले, ट्रबल के मामले में? नॉट एग्जैक्टली, नहीं नहीं, यूरी एडमिटेड, यूरी ने बताया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर लास्ट वीक, वास्तविकता ये है कि वो पिछले सप्ताह ही उन्हें डिग्री मिली है, डॉक्टर के रूप में क्वालिफाइड हुए हैं। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, संभवतः तुम उनके पहले मरीज होगे। यू नी हिम एज ए स्टूडेंट देन, और तुम उन्हें जानते हो एक विद्यार्थी के रूप में। आई हैव नोन एंस्ट फॉर ईयर्स, मैं एंस्ट को वर्षों से जानता हूँ।
यूरी हेजिटेटेड फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, यूरी कुछ क्षणों के लिए हिचकिचाते हुए कहा, ही इज नॉट ए फूल, देखो वो मूर्ख नहीं है। ही वार्नड एल्बर्ट, उन्होंने एल्बर्ट को चेतावनी दिया। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आईज, तुम उन्हें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करना। दैट्स ऑल, बी फ्रैंक विथ हिम, खुल करके बात करना, बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैवंट, लेकिन ये ऐसा दिखाने की कोशिश मत करना कि तुम्हें वो हुआ है, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, जो तो वास्तव में नहीं है। नॉट दैट यू हैड डिसीव एनीवन, तुमने किसी को धोखा नहीं दिया। यूरी एडेड, यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, तुम बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकते, तुम दुनिया के सबसे बेकार झूठे कहलाओगे। अल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर, अल्बर्ट पूरा दिन यही सोच में विचार गुजारता रहा कि डॉक्टर से क्या कहेगा। व्हेन द टाइम अराइव्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट, जब अपॉइंटमेंट का समय आया, ही हैड वरीड ओवर इट सो मच दैट ही रियली वाज क्वाइट नर्वस, वो इतना चिंता में पड़ गया कि वास्तव में वो नर्वस हो गया था। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल, मैं नहीं जानता कि मैं अपने मुसीबत के बारे में कैसे बताऊं। डॉक्टर वेल, ही बिगिन, उसने डॉक्टर वेल से कहना शुरू किया। डोंट ट्राई, सेड द यंग डॉक्टर, कोशिश भी मत करो, युवा डॉक्टर ने कहा विथ ए फ्रेंडली स्माइल, एक मित्रतापूर्ण मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहा, देखो कोशिश भी मत करो तुम इस तरह से बताने की। यूरी हैज ऑलरेडी गिवन मी ए हिस्ट्री ऑफ द केस, यूरी ने मुझे इस केस का इतिहास बताया हुआ है। ओ व्हाट डिड ही से, अरे क्या बताया? ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, केवल यही कि भाई तुम मुझसे ये चाहते हो कि मैं ये समझूं कि तुम्हारा नर्वस, ये कहूं कि तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू द स्कूल, और ये कहूं कि तुम्हें अब उस स्कूल वापस नहीं जाना चाहिए। ओ डियर, एल्बर्ट फेस फेल, ओ एल्बर्ट का चेहरा गिर गया। ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट, ये आपको उसे नहीं बताना चाहिए था। व्हाई नॉट, क्यों नहीं बताना चाहिए था? इजंट ट्रू इट देन, तो क्या ये सत्य नहीं है? यस दैट्स द ट्रबल, लेकिन यही तो परेशानी का कारण है। नाउ यू विल से देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ मी, अब आप कहोगे कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है। एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, और आप मुझसे कहोगे कि फिर से मैं वापस स्कूल जाऊं। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा, इतना निश्चित हो कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? As a matter of fact, I am pretty sure you are in a nervous state about that school. वास्तविकता ये है कि मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि तुम उस स्कूल को लेकर के तुम वास्तव में नर्वस हो रहे हो। बट आई हैवेंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैंने तुम्हें अभी कुछ बताया नहीं इसके बारे में। सेड अल्बर्ट वाइड आइड, अल्बर्ट ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, हाउ कैन यू नो दैट, आप कैसे जानते हैं? बिकॉज यू वुडेंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ यू hadn't been pretty close to a nervous breakdown, क्योंकि तुम फिर मेरे पास नहीं आते, क्योंकि तुम उसके करीब हो। दैट्स वाई, यही कारण है, वास्तव में तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली, डॉक्टर ने कहा, इफ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर ए वाइल, व्हाट विल यू डू? अगर मैं तुम्हें ऐसा सर्टिफाई करके दूं कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है और तुम्हें स्कूल से कुछ समय के लिए दूर रहना चाहिए, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे? आई विल गो टू इटली, सेड एल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा, मैं इटली जाऊंगा। टू मिलान, मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर, जहां पे मेरे माता पिता है। एंड व्हाट विल यू डू देयर, और तुम वहां क्या करोगे? आई विल ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, मैं वहां पर किसी इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूंगा। हाउ कैन यू विदाउट डिप्लोमा, बिना डिप्लोमा के तुम कैसे वहां पे तुम्हें एडमिशन मिलेगा? आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क, मैं अपने मैथमेटिक्स के टीचर से कहूंगा कि मेरे काम को लेकर के वो कुछ मुझे लिख के दे। एंड परहैप्स दैट विल बी एनफ, और संभवतः वो पर्याप्त होगा। आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल, मुझे सारी वो गणित पता है जो उन्होंने स्कूल में मुझे पढ़ाया। एंड ए बिट मोर, बल्कि उससे भी ज्यादा। ही एडेड व्हेन डॉक्टर वेल लुक डाउटफुल, उसने ये जोड़ते हुए कहा जब डॉक्टर वेल को उसने देखा कि कुछ संदेह से भरे हुए। वेल इट्स अप टू यू, ठीक है यह भी तुम्हारे ऊपर ही है। ही सेड, आई डाउट इफ आई विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योरसेल्फ और एनीवन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर, मुझे संदेह है, लेकिन फिर भी मैं देख सकता हूं कि तुम यहाँ पर कोई अच्छा नहीं कर रहे हो, न कि अपने साथ न किसी और के साथ।
यहाँ रुक करके तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला और न हो रहा है। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल? तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो कि मैं कहूँ, कितना समय के लिए कहूँ कि तुम्हें स्कूल से दूर रहना चाहिए? वुड 6 months बी ऑल राइट? 6 महीना ठीक होगा? दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू। ये तो बहुत अच्छा होगा श्रीमान जी, अगर आप ऐसा कहते हैं। इट इज नथिंग, कुछ भी नहीं। आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ, सो आई नो हाउ यू फील। देखो, मैं अभी भी विद्यार्थी से ही निकला हूँ और मुझे पता है कि तुम कैसा सोचते हो, क्या लगता है तुम्हें। हियर यू आर, तुम यहाँ हो। डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट। ये लो देखो। और डॉक्टर वेल ने उसे सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। एंड द बेस्ट ऑफ लक, और जीवन में तुम्हारा भला हो, अच्छा हो। हाउ मच? डॉक्टर जी, कितना? नथिंग। इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, इनवाइट यूरी टू ए मील। कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा है, तुम यूरी को खाने पे बुला लो। ही इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू। वो मेरा अच्छा मित्र है और तुम्हारा भी। आई थिंक, मैं समझता हूँ। अल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर। अल्बर्ट के पास कोई पैसा नहीं था, बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सपर। लेकिन उसने ऐसा दिखाया कि हाँ उसके पास है, और वो यूरी को बाहर खाने पे ले गया। Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. यूरी को उसने सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहा, कितना अच्छा है। Yes, it is fine. यूरी agreed. हाँ, बढ़िया है। यूरी उससे सहमत हो गया। 6 months is a good period. 6 महीने का समय बहुत अच्छा समय है। This way you won't actually be leaving the school. So if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. हाँ, इतना पर्याप्त समय है। अगर खराब से खराब समय भी आएगा तो तुम वापस आ सकते हो और अपने शिक्षा को कंटिन्यू कर सकते हो अपने डिप्लोमा के लिए। आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस। अरे नहीं, मैं कभी भी उस स्थान पर वापस नहीं जाऊंगा। अल्बर्ट एश्योर्ड हिम। अल्बर्ट ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो। मैं इस सर्टिफिकेट को लेकर के हेड टीचर के पास जाने वाला हूँ, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट। और वो लास्ट डे होगा मेरे स्कूल का। डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम। यूरी ने उसे याद दिलाया, मत भूलना मैथमेटिक्स के अध्यापक से एक रेफरेंस लिखवाना लिखित में, जो तुम्हारे काम आएगा। मीटिंग द डॉक्टर। स्टूडेंट्स, till now all of you have learned. Yuri tells Albert to see Dr. Ernst Weil, who had just qualified to be a doctor, and wants him to not pretend to have something he doesn't have. When Einstein went to see Dr. Weil, Yuri had already told the doctor about Einstein's troubles and his need to leave that school. Einstein told Dr. Weil that he plans to ask his mathematics teachers to write something about his work and hopes to get into an Italian college based on that document, hoping it would be enough. Dr. Ernst Weil accepted this doubtfully and wrote him a certificate to stay away from school for 6 months. Dr. Weil refused payments but asked Einstein to take Yuri to supper if he could afford it. And even though he couldn't afford it, Albert took Yuri to supper. Mr. Koch willingly gave Albert the reference he wanted. मैथमेटिक्स के टीचर डॉक्टर कोच ने इच्छापूर्वक अल्बर्ट को रेफरेंस लेटर लिख के दिया। इफ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, उसे देते हुए कहा मैथमेटिक्स के टीचर ने कि अब मैं तुम्हें इससे अधिक नहीं शिक्षा दे सकता, नहीं पढ़ा सकता, और संभवतः तुम जल्द ही मुझे पढ़ाने योग्य हो जाओगे। विल दैट बी ऑल राइट? ही आस्क्ड। ये ठीक रहेगा? उसने पूछा। दैट सेइंग टू मच सर, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा, ये तो बहुत ज्यादा आप कह रहे हैं। इट इज ओनली द ट्रुथ। नहीं नहीं, ये सच्चाई है जो मैं कह रहा हूं। बट ऑल राइट, आई विल पुट इट मोर सीरियसली। लेकिन इन शब्दों को मैं सीरियसली अच्छे वर्ड्स में लिख के दूंगा। इट वॉज स्टिल ए ग्लोइंग रेफरेंस। ये बड़ा ही अच्छा रेफरेंस था। एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. मिस्टर कोच इस पॉइंट को लिख दिया उन्होंने कि ये जल्द ही किसी भी कॉलेज में एंटर करने के योग्य है और अपने हायर मैथमेटिक्स में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इसकी पर्याप्त योग्यता है। आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस। मुझे दुख है
कि तुम यहाँ से जा रहे हो, ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, जबकि तुम मेरी क्लास में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इट इज ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा, श्रीमान जी, एकमात्र इस स्कूल में यही क्लास है मैथमेटिक्स की जिसमें मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा। बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर? लेकिन आप कैसे जानते हैं श्रीमान जी कि मैं जा रहा हूं? यू वुडेंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, अन्यथा तुम ये रेफरेंस के बारे में मुझसे नहीं कहते। मुझे पता है, तभी तुम ये रेफरेंस लेटर मांग रहे हो। आई थॉट यू डिड वंडर, और मैं समझता हूं कि तुम आश्चर्य बहुत अच्छा करोगे। देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन, ऐसा इसमें कुछ भी आश्चर्य करने वाली बात नहीं है आइंस्टीन। आई न्यू यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योरसेल्फ, मुझे पता है कि तुम अपने बारे में जानना चाहते हो इसके पहले कि तुम यहां से जाओ। अल्बर्ट वाज पजल्ड, अल्बर्ट नहीं समझ पाया। व्हाट डिड द टीचर मीन, कि अध्यापक के कहने का क्या मतलब था। ही सून फाउंड आउट, लेकिन जल्दी उसे पता चल गया। बिफोर ही हैड ए चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, ही वाज समन टू द हेड्स रूम, और इसके पहले कि उसे हेड टीचर के पास जाने का मौका मिलता इंटरव्यू का, उसे हेड के कमरे से ही बुलावा आ गया। वेल, इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, चलो अच्छा ही हुआ, नहीं तो मुझे हेड के कमरे के बाहर 1 घंटा 2 घंटा इंतजार करना पड़ता। चलो वहीं से बुलावा आ गया है। ही थॉट, उसने सोचा। ही हार्डली बॉदर्ड टू वंडर व्हाई ही हैड बीन सेंट फॉर, उसने ये भी सोचने की कोशिश नहीं कि उसे क्यों बुलाया गया है। बट वेगली सपोज्ड ही वाज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस, लेकिन इतना समझ गया था कि उसे फिर से पनिश करने के लिए बुलाया गया है, उसके खराब कामों के लिए और उसके आलस्य के लिए। वेल, ही हैड फिनिश्ड विथ पनिशमेंट्स, चलो ठीक है, पनिशमेंट के साथ ही इस स्कूल से खत्म होगा उसका दिन। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू अल्बर्ट सरप्राइज, मैं तुम्हें पनिश करने नहीं जा रहा, हेड टीचर ने अल्बर्ट से कहा। योर वर्क इज टेरिबल, तुम्हारा कार्य बहुत ही भयावह है, खराब है। एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, और अब मैं अब तैयार नहीं हूं कि तुम इस स्कूल में और अत्यधिक रुको। आइंस्टीन, आई वांट यू टू लीव द स्कूल नाउ, मैं चाहता हूं कि तुम इस स्कूल को छोड़ के चले जाओ। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड अल्बर्ट डेज, अल्बर्ट ने इस शब्द को रिपीट किया, लीव स्कूल नाउ, दैट इज व्हाट आई सेड, हाँ मैंने यही कहा। यू मीन, सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा, दैट आई एम टू बी एक्सपर्ट, मुझे निकाला जा रहा है। यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश आइंस्टीन, आइंस्टीन तुम इसी तरह से समझ सकते हो अगर तुम ऐसे ही लेना चाहते हो कि तुम्हें निकाला जा रहा है। द हेड टीचर वॉज नॉट मिंसिंग वर्ड्स, हेड टीचर शब्दों को मिला जुला नहीं रहे थे। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड, सबसे आसान तरीका यही होगा कि तुम अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से तुम यहां से चले जाओ। एंड देन द क्वेश्चन वोंट अराइज, फिर ये प्रश्न उठेगा ही नहीं। बट सेड अल्बर्ट, लेकिन अल्बर्ट ने कहा, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच, तुम्हारी क्लास में होने से अध्यापक को दिक्कत होती है, वो पढ़ा नहीं सकता। एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न, और दूसरे विद्यार्थियों को दिक्कत होती है शिक्षा ग्रहण करने में। यू रिफ्यूज टू लर्न, तुम सीखने से मना करते हो। यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन, तुम लगातार विद्रोही बनकर के क्लास में रहते हो। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर, और कक्षा में कोई भी गंभीर कार्य हो ही नहीं सकता जब तक तुम वहां हो। अल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट, अल्बर्ट तो एकदम भौचक होकर के, और उसे लगा कि जैसे पॉकेट में पड़ा हुआ वो सर्टिफिकेट वो छेद करके निकल जाएगा। वो सोचा था कि वो देगा, उसके पहले ही वहां से उसको एक्सपेल किया जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे, ही सेड, उसने कहा ठीक है मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टीन, द हेड सेड, हेड ने कहा ठीक है फिर हम आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं। फॉर ए मोमेंट अल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल, एक क्षण के लिए अल्बर्ट के मन में आया कि उस व्यक्ति को बता दे कि वह उनके बारे में क्या सोचता था और उनके स्कूल के बारे में।
Then he stopped himself. लेकिन वो रुका. Without another word, holding his head high, he stepped out. और बिना कोई शब्द कहे हुए सर को उठा करके वहां से निकल गया. शट द डोर आफ्टर यू. हाँ, बाहर निकलने के बाद दरवाजा बंद कर दो. साउटेड द हेड. हेड चिल्लाया. अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम. अल्बर्ट ने अनदेखा किया, अनसुना किया. ही वॉक्ड स्ट्रेट ऑन. वो सीधा वहां से निकल के चला गया. आउट ऑफ द स्कूल. स्कूल से बाहर निकल के. वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स. जहां पर वो 5 दुख भरे वर्ष उसने बिताए थे. विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट ए लॉस्ट लुक. बिना सर पीछे मुड़े हुए, सर घुमाए हुए कि एक बार अंतिम बार देख ले स्कूल को जहां पर उसने 5 वर्ष बिताए. ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीवन ही वांटेड टू से गुड बाय टू. वो कुछ भी नहीं सोचना चाहता था किसी के बारे में भी और गुड बाय करने के लिए. इंडीड यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिच. वास्तव में यूरी एकमात्र उसका मित्र था. म्यूनिच में ऐसा व्यक्ति था. ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन. उस शहर को छोड़ने के पहले उसने सोचा कि उनसे मिल लिया जाए. ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल. बाकी कोई ऐसा नहीं था. एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन. एल्सा वापस बर्लिन चली गई थी. एज ही हैड नो चला गया था. एज ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स. और जबकि आइंस्टीन के पास कोई ऐसा दूसरा वास्तविक मित्र नहीं था. गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी. यूरी ने कहा एंड ही लेफ्ट. और वो वहां से चला गया. यू आर गोइंग टू बी ए वंडरफुल कंट्री. तुम एक बहुत अच्छे शहर में जा रहे हो. आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर. और मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम वहां पर बहुत प्रसन्न रहोगे. Leaving school. Dear students, till now all of you have learnt. Einstein's math teacher Mr. Koch wrote a glowing reference for Einstein and even wrote that he was ready immediately to enter a college to study higher mathematics. Mr. Koch suggested that he knew Einstein was going to leave even before Einstein himself did. Einstein was summoned to the head teacher's office, where the head teacher asked him to leave the school because his presence made it hard for the other students to learn because he refused to learn at all. Einstein said goodbye to Yuri since he was the only one he felt like seeing before leaving Munich. Yuri wished him good luck and expressed the hope that Einstein would be happier there. Thank you very much, dear students, for watching the video presentation on the lesson.